अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बोर्ड के एग्जाम से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को लाजमी तौर पर सुनना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज, function prototypes for built-in functions are specified in header files. Which of the following looks for the prototypes of function used in a program compiler? The name of actual and formal parameters may or may not be same. Formal arguments are also called dummy arguments. A built-in function can be redefined. A dash is a self-contained piece of code function. Predefined functions are packaged in dash header files. A dash provides basic information about the function to the compiler. Function prototype. The duration for which a variable exists in memory is called its lifetime. Dash of a variable refers to the region of the program where it can be accessible. Scope. Dash variables are declared outside all blocks. Global variable. A function cannot return more than dash value through return statement. 1. The dash parameters specified in function header are called dash parameter. तो function header में जो हमारे पास parameter होता है उसको हम formal भी कहते हैं, उसको हम dummy भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो correct option हमारे पास है both A and C. The parameter passed to a function in the function call are called dash parameter, actual parameter. Function help to achieve dash programming, modular programming. Global variables are created in RAM. Which of the following is true about a function call? Stops the execution of the program. Transfer control to the called function. Transfer control to the main function. Resumes the execution of the program. So B is the correct option, transfer control to the called function. In a C program, two functions can have same name बट डिफरेंट पैरामीटर्स। जेन में रखना आपने, सेम नेम हो सकते हैं फंक्शंस के लेकिन उनके पैरामीटर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डेफिनेशन। ये डिक्लेरेशन पे आपने टिक नहीं करना, डेफिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेशन टाइम पे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है। द नेम ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मे और मे नॉट बी सेम। सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। A function which call itself is called recursive function. एक फंक्शन जो अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करता है तो उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। A function is called with the reference of its name. The actual value are passed to the function in dash function call. The last statement of the body of the function is return. The printf is a built-in function. Important short answers. Define function. अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है और हर पॉइंट के अंदर जो कीवर्ड है उसको मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किया हुआ है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। A function is a self-contained piece of code. It can be used to perform a specific task. Function always return a value. If the function does not return any value, its return type is void. There are two types of function. Number one built-in functions, number two user-defined functions. इनको explain करने की आपको short answer में जरूरत नहीं है। What is meant by built-in functions? Those functions which are already defined in programming language. ऐसे functions जो कि language में पहले से defined होते हैं, उन functions को हम built-in functions और library functions कहते हैं। These functions have predefined purpose in programming language. इनका purpose जो है वो पहले से defined होता है। जिस purpose के लिए defined किए जाते हैं उसी purpose के लिए आपने इन functions को अपने program के अंदर use करना है। You just need appropriate header file to use built-in functions. For example, printf, scanf, getch, these are the built-in functions. Define user-defined function with example. A user-defined functions are those functions that are defined by the user at the time of writing program. यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनको यूजर, जिनको प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, दीज फंक्शंस आर नोन एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय द प्रोग्रामर. These functions are made for code reusability and for saving time and space. For example, sum, max, factorial, these are the user defined
functions. Write any 2 advantages of function. तो यहाँ पर मैंने 4 एडवांटेजेस लिखे हैं, इनमें से कोई से 2 एडवांटेजेस जो है आपने अपने आंसर में लिखने हैं. फंक्शंस मेक योर कोड रीयूजेबल. रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है कि जब हम अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जब जब हमें उस फंक्शन की जरूरत पेश आएगी, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ रीयूजेबिलिटी. इट मेक्स द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम उसको छोटे छोटे फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं तो प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है. नंबर 3, प्रोग्राम डिबगिंग इज वेरी इजी यूजिंग फंक्शन. अगर आपके पास कोई प्रोग्राम में एरर आते हैं और आपने फंक्शन यूज किए हुए हैं तो प्रोग्राम को डिबग करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा. फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम. हम अपने फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा दफा कॉल कर सकते हैं, एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस से. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. डिफाइन फंक्शन हेडर. फंक्शन हेडर और फंक्शन प्रोटोटाइप इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों में, फंक्शन प्रोटोटाइप को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के साथ, जबकि फंक्शन हेडर के अंदर हमारे पास सेमीकोलन नहीं आता. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर. अगर आप फंक्शन हेडर की डेफिनेशन की बात करें, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर. यानी कि जब हम एक फंक्शन बनाएंगे तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसको हम लोग नाम देंगे फंक्शन हेडर का. अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन नेम, नंबर 3 पैरामीटर लिस्ट. ये अभी हम लोगों ने फंक्शन प्रोटोटाइप का जो शॉर्ट आंसर देखा था उसका भी सिंटैक्स सेम यही है. उसमें भी हमारे पास क्या आ रहा था, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन. तो फंक्शन हेडर में और फंक्शन प्रोटोटाइप में जो डिफरेंस है वो ये है कि फंक्शन हेडर को हम टर्मिनेट नहीं करते सेमीकोलन के साथ, जबकि फंक्शन प्रोटोटाइप को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के साथ. लेकिन दोनों के सिग्नेचर जो है वो सेम होने चाहिए. जो रिटर्न टाइप आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप की है वही रिटर्न टाइप आपकी फंक्शन हेडर की होगी. जो फंक्शन नेम आपने फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखा है वही फंक्शन नेम आपका फंक्शन हेडर में होगा. जो पैरामीटर आप फंक्शन प्रोटोटाइप में पास कर रहे हैं वही पैरामीटर आपने फंक्शन हेडर में पास करने हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, द नेम ऑफ द फंक्शन, द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर जो लिस्ट होगी इसको हम इनक्लोज करेंगे पैरेंथेसिस के साथ. द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड द फंक्शन हेडर आर सेम बट देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फंक्शन हेडर. तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस है फंक्शन प्रोटोटाइप में और फंक्शन हेडर में, वो सिंपल सा ये डिफरेंस है कि फंक्शन हेडर के एंड पे सेमीकोलन नहीं आता. What is meant by function definition? A function definition consists of function header which identifies the function followed by the body of function between curly braces containing the executable code for the function. जब भी प्रोग्रामर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डेफिनेशन हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. फंक्शन डेफिनेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 फंक्शन हेडर एंड नंबर 2 बॉडी ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है जिसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर नेम, ये हमने जो पहली लाइन लिखी है दैट इज नोन एज अ फंक्शन हेडर. और इसके नीचे ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगी हुई हैं इनके दरमियान हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल कोड होगा और इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, फंक्शन बॉडी का. ये दोनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं. व्हाट इज मीन बाय कॉलिंग अ फंक्शन, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन कॉल. Function call is the mechanism that is used to invoke or call a function to perform a specific task. जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म, जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज अ फंक्शन कॉल. A function can be called at any point or any time in the program. हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट से किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं. जब भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इन्वोक करना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. नंबर 1 फंक्शन का नाम हमें पता होना चाहिए, नंबर 2 हमने जो उसको पैरामीटर या वैल्यू पास करनी है वो पता होनी चाहिए, नंबर 3 हम उसको टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के साथ.
व्हेन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं तो कंट्रोल हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन पे ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमने एक फंक्शन का नाम लिखा फैक्ट, इसको हमने वैल्यू पास की 5 और इसको टर्मिनेट किया सेमीकोलन के साथ। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अ कॉलिंग द फंक्शन। डिस्क्राइब रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन। जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं, उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज की जाती है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। इसका सेंटेक्स हमारे पास क्या होता है, रिटर्न ब्रैकेट में एक्सप्रेशन एंड देन इसको हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के साथ। जैसे हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, हमारा एक्सप्रेशन एवेल्युएट होता है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम रिटर्न करते हैं। और जैसे हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हमारे फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है इसकी मदद से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। डिस्क्राइब लाइफ टाइम एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। Lifetime of the variable, the duration in which a variable exists in memory is called lifetime of the variable. Scope of the variable, the region or area of a program in which a variable is accessible is known as a scope of the variable. A variable cannot be accessible outside its scope. यानी कि जिस ब्लॉक में आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उस ब्लॉक के अंदर ही, उस रीजन के अंदर ही आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द ब्लॉक आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। डिफाइन लोकल वेरिएबल्स। ऑल वेरिएबल्स दैट डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक और विद इन द पेयर ऑफ करली ब्रेसेस आर नोन एज अ लोकल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल्स हमारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज विद इन द ब्लॉक। इस वेरिएबल ए को हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस करना चाहें तो कंपाइलर जो है ये एरर जनरेट करेगा। और इसी तरीके से जो लोकल वेरिएबल होते हैं, इसका जो लाइफ टाइम होता है, जब हम इस ब्लॉक के अंदर एंटर होंगे, इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी और जैसे हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, ये लोकल वेरिएबल जो है इसकी मेमोरी जो है वो डी एलोकेट हो जाएगी, ये वेरिएबल जो है ये डेड हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है और जो लाइफ टाइम होता है वो विद इन अ ब्लॉक होता है। जिस ब्लॉक में आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द ब्लॉक आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स, आउटसाइड द मेन फंक्शन और ऑल अदर फंक्शंस। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मेन फंक्शन से बाहर या तमाम फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल्स हमारे ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए जो है इसको मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया। नाउ दिस वेरिएबल बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो एवरीवेयर इन द प्रोग्राम होता है। आप प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होती है तब ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, और जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो ग्लोबल वेरिएबल की मेमोरी जो है वो डी एलोकेट होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम के स्टार्ट होने से प्रोग्राम के एंड होने तक जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो मेमोरी में एग्जिस्ट रहता है। What is mean by actual parameters? The parameters that are passed in a function call are called actual parameters. जब हम पैरामीटर्स को फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की मदद से पास करते हैं, these parameters are known as a actual parameters. For example, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए a और b। जब इन दो वेरिएबल को हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की मदद से एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो ये पैरामीटर्स हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल पैरामीटर्स और डमी पैरामीटर्स? फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस क्या है? जो पैरामीटर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं दीज आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स, और इसी तरीके से जो पैरामीटर्स फंक्शन हेडर में यूज किए जाते हैं दीज आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। इनको हम डमी पैरामीटर्स भी कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स आर द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, यानी कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनकी सेम कॉपी जो होती है वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर्स का जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन डेफिनेशन होता है।
जिस फंक्शन में वो पैरामीटर पास किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर आप उन फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।